So, very good morning and welcome to the first chat regarding this year's IPL, which was, pretty much we were not sure whether we'll be having the IPL this year or not. There was a lot of chat whether, along with the pandemic, we would be having an IPL or not, and if yes, whether it would take place in India or not. However, the good news came about a month back when we got to know that we would be having an IPL, though not in India, but in the UAE. So there are likely to be three venues for the IPL matches, which is Dubai, Abu Dhabi, and maybe Sharjah. We'll get to know about that very soon. But good that we are recording this on the 19th of August, which is just a month prior to the beginning of the IPL. So today I have with me my friend and my colleague Kshitij Dikshit, who is also studying with me right now. And he too is a sports enthusiast and he's an avid follower of the IPL and all other cricket leagues. So welcome, Kshitij. Thank you. Thank you. So as we got the very sad news, regarding the retirement of MS Dhoni and Suresh Raina. So there's a lot of chat about how useful and how amazing MS Dhoni has been for India and for CSK. But somewhere in the shadows of that, I feel that we did ignore Suresh Raina a bit, his contributions a bit, because it was overshadowed by all that of MS Dhoni. And given that it was the Independence Day, we didn't really focus a lot on Suresh Raina and his contributions. However, we do know that he has been amazing for India, be it as a fielder, be it as a batsman, and also as a part-time bowler. So, with the cameos, with the chip-ins that he's had over the years, anything you would like to say on that? What are your memories of Suresh Raina? See, firstly, on 15th of August 2020, it was a bit of a shock for me because a skipper whom I admired as the best finisher, the best wicket keeper, suddenly retires without saying goodbye on ground. So, yes, it was a bit of a shock for me. Even in case of Suresh Raina, because his cameos were just amazing. I mean, if if not for Suresh Raina, India wouldn't have crossed that finishing line. Honestly, in my point of view. Talking about Suresh Raina, I don't know what to say about him, man. Nobody talks about him too much. In youngsters, you use during when MS Dhoni took over captaincy and when our golden generation has started depleting and they were vanishing. Youngsters who were in headlines were Virat Kohli, Shikhar Dhawan, and then Rohit Sharma. But generally, no one that talk about Suresh Raina that much. But I would really like to pinpoint some stats about Suresh Raina. Only for World Cup. This is just the World Cup, and just imagine what impact he would have in other series. Uh, so Raina played 2011 World Cup. Though he didn't play the full World Cup, he started with the West Indies match. Didn't perform that well. In crunch situation against Australia in the quarterfinals, the three-time world champion and the defending champion, they knew how to overcome a crunch situation. They just scored 260, and on Indian pitches, it's quite achievable if you have that determination. With Virendra Sehwag, Sachin Tendulkar, Gautam Gambhir, Virat Kohli, and MS Dhoni gone back to pavilion, it really seemed difficult. So they 180 for 5 and still around 80 more runs you had to chase. Then came Suresh Raina joining Yuvraj Singh, who was already batting around what 20s or 30s. I think 20s probably. He came in and then what happened? They both kept on playing and playing, and then when Suresh got settled, he started playing his natural game, some strokes and all that. What happened? He he scored 34 not out in 28 balls, and the match was snatched by India from the jaws of Australia with 5 wickets down, won 180, and then what happened? And I still remember one six that he hit to Brett Lee over long on. So that was the that he showed, and that was a he gave a statement.
voice react for you. Right. 38 not out into India wins the match. And Yeah. Yuvraj Singh said, uh, Yuvraj Singh said, you to be mattered the most in this match for me. India qualifies for semi-final, and in semi-final, what happens? Again, India 180 something for five, and from the other end, India were losing wickets. Sachin played a knock of 85 runs, but it was one of the most horrible knocks Sachin had played. Four times he got dropped, catch dropped. Once DRS gave his luck that LBW he was given out by Ian Gould, but the decision was overturned and he was given not out. And then I think there was a stump luck that he was got out by on I think star he was stumped actually on the ball of Saeed Ajmal, but just the fraction of a second before he kept his step down, so he was safe. So one of the horrible innings, but yes, at the end again it was Suresh Raina who came to rescue. He kept on playing and playing. India didn't hit even a single six in that match, but Suresh Raina kept on going with his knock. He scored 36 not out of 39 balls, reached a respectable total of 260, though it was very, very less. But pitch was getting slower and slower, and it was a competitive total for that match. What happened? Each each and every Indian bowler took two wickets each. Five bowlers bowled and took two wickets each. India won the match, and then India went on to win the World Cup Yeah, in yeah. I Dubai. still remember the last catch of Misbah ul Haq, which came, to Virat Kohli. He took it at I think mid on or somewhere, and that was Long the on. moment. Yeah, yeah, long on. Sorry. So, and that was the moment we actually knew that we are in the finals. So, anyway, now moving to the topic, I think we are discussing about the Chennai Super Kings right now, and we can I think mix Hindi and English, given that the audience will be a mixed audience. So, जब हम चेन्नई सुपर किंग्स की टीम देखते हैं, हमने देखा है कि इस बार उन्होंने काफी बहुत ज्यादा प्लेयर्स को रिलीज तो नहीं किया है, लेकिन उन्होंने अच्छे कुछ प्लेयर्स खरीदे जरूर हैं, जो लग रहा है कि उनकी बेंच स्ट्रेंथ को काफी तगड़ी बना देगी बाकी सालों के और बाकी सारे टीमों के कंपैरिजन में। तो अगर आप देखें कि इस बार उन्होंने क्या-क्या किन किन प्लेयरों में इन्वेस्ट किया है, तो आप देखेंगे कि उन्होंने खरीदा है सैम करन को, जो ब्रिटिश ऑलराउंडर है, 5.5 करोड़ रुपए के। पीयूष चावला को हाँ, 6.75 करोड़, जॉश हेजलवुड को 2 करोड़ का, और साई किशोर को 20 लाख। सो सैम करन और पीयूष चावला का ये जो एडिशन है, इसको आप कैसे देखते हैं? see, firstly, while we look at the core Chennai Super Kings group, they have never changed their team from the season one. वो कभी अपनी team change नहीं करते, and that's why they have been one of the most successful sides, 3 IPL titles, and each and every year whenever they have played, unfortunately they were not part of 2016 and 2017 IPL. Apart from that, they have played every uh, they were all the times they were in the playoff. वो हर बार playoff में जाते हैं just because क्योंकि उनका core group strong रहता है. उन्होंने स्टीवन फ्लेमिंग को 2008 में एज अ प्लेयर लिया था. नाउ ही इज अ कोच, एंड वो वो धोनी एंड फ्लेमिंग की जुगलबंदी जिसे कहते हैं वो आज भी बरकरार है. तो वो बस कुछ स्लाइट एड ऑन्स वगैरह करते हैं. अदर देन दैट वो ज़्यादा अपनी टीम चेंज करना नहीं चाहते, ज़्यादा पसंद करते हैं लेकिन सिंस. इसको जी, इसको आप एक और तरीके से नहीं देखते कि मैंने देखा है इरफान पठान एक सीजन थे चेन्नई सुपर किंग्स के साथ, एंड आई वुड बिलीव कि इरफान पठान वाज नॉट एट हिज पीक, बट वो काफी अच्छे फॉर्म में थे, जो जब वो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में, रणजी ट्रॉफी में, एंड विद द बैट भी अच्छा कर रहे थे, और विद द बॉल ऑफ कोर्स उन्हें स्विंग भी मिल रही थी उस सीजन, जितना मुझे याद है। लेकिन एम एस धोनी ने उन्हें पूरा सीजन बाहर बिठाया था, और एम एस धोनी का ये हमेशा से रणनीति ये रही है उनकी कि वो उसी 11 एज यू शेड कि उसी 11 को खिलाते हैं, वो चेंजेस नहीं करते, जो कि बहुत अच्छा रहता है एज फार एज स्टेबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी इज कंसर्न। लेकिन
क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आईपीएल एक प्लेटफॉर्म है जहां से नए प्लेयर्स हमें मिलते हैं, जहां यंगस्टर्स को एक चांस मिलता है अपना हुनर दिखाने का? तो वहां पे अगर यंगस्टर्स को इतने मौके नहीं मिले चेन्नई सुपर किंग्स में, तो क्या ये देश के फ्यूचर के लिए थोड़ा सा हानिकारक नहीं हो जाता है कि हमें नए प्लेयर्स मिलने में थोड़ा टाइम लग जाता है, या एक्सपीरियंस नहीं मिलता है उतना जितना मिलना चाहिए? तो बात है एक्सपीरियंस की, कुछ प्लेयर्स होते हैं जिनको ड्रेसिंग रूम में बैठ के वो एक्सपीरियंस मिलता है, वो एक अलग एक्सपीरियंस है। आप जब तक ग्राउंड पे आके खेलेंगे नहीं, if you don't play the foreigners, how those Josh Hazelwood and Mitchell Stark and Pat Cummins type of bowlers bowl, जब तक आप उन्हें नहीं खेलेंगे आपको एक्सपोजर कैसे होगा? So I think एग्जैक्टली। that's some place where CSK lacks. अदर देन दैट उनकी वो एक स्ट्रैटेजी रही है जो इनको हर बार जिताती है। एट द एंड व्हाट मैटर्स इज द रिजल्ट। और माही का प्रोसेस हमेशा सही रहता है। वो एक प्रोसेस पे जाते हैं जो इनका प्रोसेस सही रहता है एंड वो हमेशा जीत दिलाते हैं। यस, बट दिस डैड्स आर्मी टैग सम और द अदर डे इनको डुबा सकता है, बिकॉज आपकी एज आपका साथ नहीं देगी। कभी फिटनेस रहती है लेकिन एज की वजह से आपका क्रिकेट का जो क्या कहते हैं खेलने का तरीका है वो डिप्लीट तो होता ही है। आपका क्रिकेट गेम प्ले डिप्लीट होता है। सो आपको यंगस्टर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, स्पेशली दोस्त who play this Ranji Trophy and Syed Mushtaq Ali Trophy so well. You have to give them the chance so that can get some good future. We have a good future in ahead. राइट, राइट, एग्जैक्टली, क्योंकि वही मेरा पॉइंट है कि अगर आप अभी सीएसके के स्क्वाड को देखें एंड प्रोबेबल प्लेइंग 11 अगर आप देखें जो लास्ट 2-3 सालों से खेल रही है सीएसके के लिए, आप उसमें देखेंगे कि इस सीजन मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स इफ नॉट ऑल आर रिटायर्ड। दे आर नॉट इंटरनेशनल प्लेयर्स। फाफ डू प्लेसी भी उसी उम्र में है जब वो रिटायर करने वाले हैं, अगले 1-2 साल में हम उन्हें रिटायर करते देख सकते हैं। तो वैसे आप देखें तो हरभजन सिंह इज प्रोबेबली वन ऑफ द ओनली प्लेयर्स जो ऑफिशियली रिटायर्ड नहीं है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि वो इंडिया के लिए और हमें दिखेंगे खेलते हुए। तो वैसे आप देखें तो इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलने वाले प्लेयर्स सब हैं जो खेल चुके हैं अपना इंटरनेशनल क्रिकेट। तो आगे एक टाइम आएगा जब ये सब एक साथ रिटायर करेंगे आईपीएल से, उस वक्त सीएसके के लिए बेंच स्ट्रेंथ कहाँ है? ये मेरा सवाल है कि क्या उन्हें अभी ये नहीं ट्राई करना चाहिए कि 11 में से मे बी 7 लोग आप खिलाओ एक्सपीरियंस वाले, लेकिन 4 नए प्लेयर्स लाओ ताकि वो अगला बिल्ड करे, आपका सक्सेसर जनरेशन एक्चुअली बिल्ड करे। नहीं तो एक डाउनफॉल आ सकता है सीएसके का जब एमएस धोनी रिटायर करेंगे, जब सुरेश रैना रिटायर करेंगे, जब ये प्लेइंग 11 हट जाएगी, तो बहुत पुराने प्लेयर्स हमारे पास नहीं रहेंगे। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि धोनी को शायद थोड़े नए प्लेयर्स इस सीजन खिला के उनको एक्सपीरियंस देना चाहिए आईपीएल खेलने का। एग्जैक्टली, बट द थिंग इज आईपीएल एक बहुत लंबा टूर्नामेंट है, 16 मैचेस, हर टीम 14 मैचेस खेलती है। सो आपका स्टार्ट होना बहुत ज़रूरी है। आपका स्टार्ट अगर अच्छा होगा देन यू विल डेफिनेटली प्ले एंड वेल। सो एक अगर स्टार्ट अच्छा मिल जाए, 5 मैचेस इन अ रो, 6 मैचेस इन अ रो जीत जाए, then maybe up in the middle of the tournament you might just try some youngsters in the middle कि वो प्रेशर सिचुएशन में क्या करते हैं। हर सिचुएशन खिलाओ youngsters को, run कराओ, वन डाउन खिलाओ, मिडिल में पिंच हिटर के ट्राई करो, 2-3 मैचेस हार जाओगे, 3-4 मैचेस हार जाओगे। CSK is not that a team which will uh, which will get eliminated easily. So they are a team who have won 3 IPL titles each and every time they have qualified for the playoffs. So they can easily come back and then make into the playoffs. But unfortunately, I think ये strategy ये लोग ना अपना पाए. But मेरा ये मानना है कि आपको फ्यूचर के लिए भी देखना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं भी ऐसा ही मानता हूँ। लेकिन अगर आप इस साल के स्क्वाड को देखें, तो एज यूजुअल इन्होंने अपनी कोर जो है उसको रिटेन किया है। दे हैव एक्चुअली रिटेन द कोर एंड समवेयर द प्रोबेबल प्लेइंग 11 इफ यू सी, देयर इज नॉट मच ऑफ अ चेंज एज कंपेयर टू द प्रीवियस सीजंस। It's going to be pretty much the same playing 11s because they've not changed anything in their core, though they've released a few players, but they've acquired a few good players as well. So looking at the new complete squad that they have,
what is the playing 11s that you would, if you are the captain, what is your playing 11s? आप किन 11 प्लेयरों को खिलाएंगे? See, unfortunately आईपीएल अपने शेड्यूल्ड टाइम पे नहीं हो पाया, जो मार्च अप्रैल में जो स्टार्ट होना था. अगर उस टाइम पे स्टार्ट होता तो मैं सीएसके को एज फेवरेट्स उतना कंसिडर नहीं करता ऑनेस्टली से, बिकॉज उनकी एक चेपॉक का जो होम ग्राउंड है वो बड़ा ही अनऑर्थोडॉक्स टाइप का है, सॉरी. वो स्लो एंड स्लगिश विकेट पे रहते हैं, वो एक स्पिन टाइप की विकेट खेलते हैं, तो वो जब बाहर थोड़ा जाते हैं तो वो वहाँ फंस जाते हैं. दैट्स व्हाट the reason why they lost the IPL 2019 final just by 1 run. मेरा ये मानना है. But considering now the IPL is in UAE, वहाँ पे ग्राउंड भी बड़े हैं और स्लो एंड स्लगिश विकेट रहती है. You can back this team now. So my playing 11, if I say, it will be Faf du Plessis, Shane Watson, Raina, Rayudu, Mahendra Singh Dhoni, captain wicket keeper, and then Dwayne Bravo, Ravindra Jadeja, Imran Tahir, Harbhajan Singh, and then Deepak Kher and Shardul Thakur. So you would actually open with Faf du Plessis and Shane Watson. So two foreigners you would actually open with, even if it's a slow pitch. So you would basically bank on their experience. Yes, and they have been doing well for CSK while opening. Last year at the end of the tournament they were sort of depleting, but they have actually shown how to bat in power play. Right. So that's a strong point, I feel. But considering the fact that most teams might want to open their bowling with spin, of course it depends on the pitch. But if the pitches are slow, if they are rank turners, then we might see teams opening their bowling with spin. So do you think Faf du Plessis and Shane Watson would be well equipped to face that and power play का time actually बिता देना बिना out हुए? ये आप T20 एक ऐसा गेम है कि आपको बहुत ज़्यादा फास्ट खेलना पड़ता है, इवन इफ यू हैव टू लूज 1 or 2 विकेट्स, फिर आप बीच में थोड़ा संभालते हो, and then after 13th over you start बहुत in such conditions where the ball रुक के आता है and the pitches are slow. वहाँ पे I mean आप को एक्सपीरियंस को बैक करते हैं, क्योंकि अगर ये लोग खड़े रह गए तो ये आगे जाके स्कोर को 160 के अराउंड जा सकते हैं, which is actually a winning total. बिल्कुल, yes. So when I look at the same squad, the playing 11s I would rather look to play is somewhat like this, that I would open with Ambati Rayudu and Faf du Plessis, because Ambati Rayudu I feel is someone who needs some time and who might not be the best choice at number 4, because at this age, at this juncture, he might not be able to actually continue at that pace where he needs to actually accelerate at that point of time. So I would open with Ambati Rayudu and Faf du Plessis, not Shane Watson, because I feel Faf du Plessis is slightly better equipped against the spinners. He's slightly better on slow pitches. So they might want to look at Faf du Plessis and keep Shane Watson outside as the third opener. At number 3, of course, Suresh Raina, as we talked about him. And I do feel that Suresh Raina might be very good this season, because now he doesn't have the pressure of performing to get into the Indian team. Exactly. That's why. And same goes for Mahendra Singh Dhoni. Yeah. इन दोनों के ऊपर प्रेशर नहीं होगा and they will just enjoy their cricket. That's it. Yes. और अगर आप लास्ट 2 सालों का एवरेज भी देखें, you'll see कि MS धोनी ने जिस टाइप की बैटिंग अपनी डेवलप की है वापस से, जो हम विंटेज धोनी कहते हैं, जिसको जो पहले हम इंडिया के लिए देखते थे जब उनके लंबे बाल थे, वैसी बैटिंग उन्होंने शुरू की है सीएसके के लिए लास्ट 2 सालों में, और इसलिए आई थिंक वो बहुत लीथल हो जाते हैं. और मगर मैं चाहूंगा कि वो नंबर 4 पे खेलें, जैसे आपने नंबर 5 पे रखा है, मैं चाहूंगा नंबर 4 पे खेले, और नंबर 5 में मैं चाहूंगा केदार जाधव को. केदार जाधव मुझे लगता है कि काफी और खेल सकते थे इंडिया के लिए अगर थोड़े पहले लाए जाते,
लेकिन शायद उन्होंने डोमेस्टिक परफॉर्मेंसेस थोड़े लेट दिए, जिसकी वजह से उनका इंडिया करियर थोड़ा छोटा रहा। मगर मुझे लगता है कि ही हैज़ अ लॉट ऑफ टैलेंट, सो ही कैन बैट एट नंबर 5, और वो थोड़ा एडिशनल स्पिन का भी ऑप्शन देते हैं आपको यूएई के स्लो पिचेस में। एग्जैक्टली। इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम स्टैमिना ही रहा है शुरू से। इनके जी, पास इतना स्ट्रॉन्ग स्टैमिना नहीं है, दैट्स व्हाई इनको इतनी बैकिंग नहीं मिलती है। राइट, राइट। नंबर 6 पे मैंने रखा है रविंद्र जडेजा को, और नंबर 7 पे मैंने रखा है ड्वेन ब्रावो को, जो उनके सिग्नेचर डेथ बॉलर और फिनिशर हैं। फिर नंबर 8 पे दीपक चहर, हरभजन सिंह, लुंगी एनगीडी और इमरान ताहिर। तो इसमें अगर आप देखें कि 3 स्पिन के ऑप्शन हैं। रविंद्र जडेजा लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर है। फिर अगर आप देखें हरभजन सिंह ऑफ स्पिनर है, राइट आर्म ऑफ स्पिनर है। और हरभजन सिंह ने भी अपनी बॉलिंग को मुझे लगता है थोड़ा सा इवॉल्व किया है ओवर द इयर्स आईपीएल के लिए इम्प्रूव किया T20 है फॉर्मेट। डेफिनेटली। जी, एंड शुरू से ही आई मीन हरभजन सिंह की अगर बात करें तो ही हैज बीन द बेस्ट इंडियन स्पिनर इन आईपीएल। एंड लास्ट ईयर अगर फिंगर स्पिनर्स में देखें, ही वाज द हाईएस्ट विकेट टेकर विद 17 विकेट्स इन हिज पॉकेट। राइट, राइट। सो आई थिंक समवेयर ही इज एक्चुअली फोकस्ड ऑन कर्बिंग द रन्स। उन्होंने ऐसी बॉल डाली है कि रन ना जाए ज्यादा, जिसके वजह से प्रेशर में बैट्समैन उनको विकेट दे जाते हैं। तो आई थिंक बहुत अच्छी रणनीति अपनाई है उन्होंने अपने बॉलिंग के लिए। अनफॉर्चुनेटली मैं अब हरभजन सिंह को शायद एक आईपीएल और देख पाऊंगा, ये आईपीएल एंड द नेक्स्ट। सो 2 IPLs एंड देन अनफॉर्चुनेटली we'll we lose the complete golden generation of Indian cricket. Right, right. I Completely. agree. Yes. Even It MS is Dhoni sad, for that but matter. Yeah, he yes, also MS might. धोनी। Yeah, आई मीन इंडिया की रिटायरमेंट की मैं बात कर रहा था फिलहाल, एंड आईपीएल से भी वो गुड बाय ही कर दे। MS धोनी तो 2022 तक की बात चल रही है उनकी, बट 2021 आईपीएल माइट बी हरभजन सिंह लास्ट आईपीएल। तो हरभजन सिंह तो है ही, और इमरान ताहिर भी हैं, जो एक बहुत एक्सपीरियंस स्पिनर हैं, बहुत अच्छे लेग स्पिनर हैं, विकेट टेकर हैं। तो इस हिसाब से 3 बहुत अच्छे स्पिन बॉलिंग ऑप्शंस होते हैं। और साथ में आपके पास सुरेश रैना और केदार जाधव का भी अनुभव है, जो बीच में चिप इन कर सकते हैं अपने ऑफ स्पिन के साथ। तो इस हिसाब से अगर आप सिर्फ स्पिन का देखें तो चेन्नई सुपर किंग्स मेरे ख्याल से सबसे स्ट्रॉन्ग टीम होगी पूरे आईपीएल। लेकिन जो अच्छे फैक्ट्स हैं, जो कुछ चेंजेस मुझे दिखे हैं, जैसे सैम करन को लिया गया है। मुझे लग रहा है कि सैम करन को लेके ये शायद एक स्टेटमेंट डाल रहे हैं कि ड्वेन ब्रावो की जैसे उम्र हो गई है और ड्वेन ब्रावो को भी एक सक्सेसर चाहिए। कहीं ना कहीं सैम करन वो ऑलराउंडर सक्सेसर हो सकते हैं, जो शुरू में भी कुछ ओवर्स डाल सकते हैं, क्योंकि ही नोज हाउ टू मूव द बॉल, एंड ही आल्सो bowled pretty well last year in one of the matches at the death. So Sam Curran can be a good option, maybe 2 overs up front along with Deepak Chahar, and then 2 overs at the death. तो Sam Curran उस ऑप्शन के लिए अच्छे हो सकते हैं। नंबर 7 या 8 पर बैटिंग कर सकते हैं, फिनिश कर सकते हैं मैचेस, और साथ में बॉलिंग में भी काफी अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और पीयूष चावला का एडिशन आप कैसे देखते हैं? टू बी ऑनेस्ट मैं बहुत सरप्राइज था जब मैंने ऑप्शन में पीयूष चावला को 6.5 करोड़ में देखा, बट यस, कंसिडरिंग देयर चिप ऑफ की पिच उस टाइम उन्होंने लिया था, मुझे नहीं लगता था पीयूष चावला को इतने मौके मिलेंगे। बट नाउ थैंक्स टू डिले इन आईपीएल एंड जो वेन्यूज चेंज हो गए, यूएई में ही आईपीएल चला गया, जहाँ की स्लगिश विकेट की वजह रहती है। So yes, you will see Piyush Chawla more into the team this राइट, time. राइट। एंड Maybe आई an option for Imran Tahir if you want to bring in Josh Hazelwood. एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, मैं भी वही सोच रहा था कि अगर इमरान ताहिर को ये बाहर बिठाएं और पीयूष चावला को अंदर ले आए, तो एक एक्स्ट्रा बैटिंग ऑप्शन तो मिल ही जाता है, क्योंकि पीयूष चावला नोज हाउ टू हिट दोस बिग शॉट्स। एंड क्या हुआ, सब ठीक है? हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ। कंटिन्यू कर रहा हूँ। क्योंकि पीयूष चावला नोज हाउ टू हिट दोस बिग शॉट्स, वो छक्के मार सकते हैं, चौके मार सकते हैं आखिर के ओवरों में, और इमरान ताहिर की जगह आ सकते हैं, और फिर आपको ऑप्शन मिलता है एक एक्स्ट्रा फॉरेनर खिलाने का। तो जैसे आपने कहा जॉश हेजलवुड है, इनफैक्ट इनके पास और कोई है,
मिचेल सैंटनर भी है, पर मिचेल सैंटनर तो शायद रविंद्र जडेजा के लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट हैं। तो इन केस जड्डू इंजर हुए या जड्डू को बाहर करना पड़ा किसी कारण में, तो सैंटनर अंदर आ सकते हैं। और नीचे हम देख सकते हैं कि इमरान ताहिर बाहर जाके शायद पीयूष चावला अंदर आ जाए, या फिर शायद लुंगी एनगीडी की जगह जॉश हेजलवुड तो खेल ही सकते हैं, लेकिन शायद दीपक चहर की जगह जॉश हेजलवुड कभी आ जाए अंदर। तो फिर भी हम देख सकते हैं कि पीयूष चावला खेले इमरान ताहिर की जगह। तो काफी हाँ, सारे तो पॉसिबल। कॉम्बिनेशन एंड कॉम्बिनेशन में सीएसके को सेटअप करना पड़ेगा उसके लिए, बट यस, दिस सेटअप लुक्स वेरी वेरी स्ट्रांग टू मी फॉर दिस आईपीएल। राइट, राइट, यस। एंड ज्यादातर हमें दिखता नहीं है कि सीएसके नए प्लेयर्स को खरीदता है। और जितना हम देखते हैं कि सीएसके और केकेआर ऐसे टीम्स रहते हैं जो ज्यादा खरीदारी नहीं करते हैं, जो अपने कोर के साथ ही स्टिक करते हैं। पर इस बार एज यू सेड, इवन आई वाज क्वाइट सरप्राइज्ड विद दीज टू परचेज, स्पेशली सैम करन एंड पीयूष चावला, 5.5 crores and 6.75 crores respectively. So they are looking at the future. I think पीयूष चावला अब क्योंकि आईपीएल यूएई में हो रहा है तो काफी यूजफुल रह सकते हैं उनके लिए। तो काफी एक्सपीरियंस भी हैं। जैसे आपने कहा 2011 के वर्ल्ड कप विनिंग टीम के भी पार्ट रहे हैं, तो काफी उम्मीदें रहेंगी इस टीम से। चलो जी, हो गया। ठीक था। हाँ, ठीक था। पहले मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूँ। हाँ, मैं भी बंद कर देता हूँ।